Good evening and welcome to Enlightened Teens. My dear teenagers and parents, we are so glad to welcome all of you today. Today we have with us Anupama Mohla. She is a journalist by career and she has worked with English National Dailies for 16 years. She is masters in psychology. She is an NLP practitioner and hypnotherapist from California Hypnosis Institute. She is also a parent coach, and soon she is going to publish her book, Art of Joyful Parenting, in mid of June. So today, Anupama ji is going to help us decoding eating and sleeping disorders, which are very common in teenagers nowadays. So I am sure everybody will be enlightened from her session today. Anupama ji, please take the stage. Hello, everybody. Good evening. And I'm sure we are going to have a very good session today. Today, I'm going to talk about a very important topic, that is eating and sleeping disorders in children. So let's start. And I'm going to share my slide. So, बच्चों, I want to know from you कि how much eating and sleeping is important for your health. Please write it in your comment box. I would like to know. And I also want to know कि अगर आप अच्छा खाते हो और अच्छा सोते हो तो आपको कैसा फील होता है. I'm sure that all of you are aware of all this. अब हमको कैसे पता लगेगा कि अच्छा खाना और अच्छा सोना हमारी सेहत के लिए अच्छा है. It helps in physical growth and development. आप सबको पता है कि अगर आपकी बॉडी को ये फ्यूल नहीं मिलेगा, दैट इज ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड एंड स्लीपिंग, दैट इज वो आपकी बॉडी को जब चार्ज करता है, तो उसमें आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है. आपको अच्छी नींद जब आती है तो आपका बॉडी रिपेयर होता है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी होती हैं, आपकी एकेडमिक स्किल्स भी अच्छी होती हैं. डोंट यू थिंक सो? सो अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. तो अगर आप अच्छा खाना खाते हैं और अच्छा सोते भी हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. और इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. आप प्लान करते हो एक रोड ट्रिप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक बनाने के लिए. आप उसमें खाना रखते हो, कपड़े रखते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से रख के आप गाड़ी ले जाते हो. यू टेक योर कार ऑन द रोड, and when you reach the highway you suddenly realize that you have not filled your fuel tank, और वो फ्यूल टैंक खाली होने वाला है. एंड मिडवे ही द व्हीकल गोज एंड इट गोज फॉर अ स्टॉल हो जाता है व्हीकल, बिकॉज देयर इज नो पेट्रोल इन द व्हीकल. द सेम थिंग हैपेंस विथ योर बॉडी. जब आप अपनी बॉडी एक कार की तरह है, उसमें अगर आप फ्यूल नहीं डालोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपकी कॉग्निटिव स्किल्स कम हो जाएंगी, फिजिकल ग्रोथ आपका कम हो जाएगा. इफ यू आर नॉट हैविंग न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है? You have nuts, you have fruits, veggies, everything has to be in the right amount. And if you don't do that, तो आपका इमोशनल वेलबींग भी नहीं होता है. तो आपको क्या करना चाहिए? एक चीज आपको जरूर याद रखना चाहिए कि आपका जो मूड है आपके फूड से इम्पैक्ट होता है. इफ यू आर ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, आई एम टेलिंग यू, you feel less stressed, you don't have much anger, irritability level goes down. If your wake up time and sleeping time is the same every day and you schedule it, your energy level also goes up, your stamina also goes up. So like for example, if you have a match next day and you have to play, I'm sure your instructor will come and tell you that, eat this lot of protein, have a lot of nuts, sleep well, have milk and fruits, sleep well in the night, have at least 8 to 10 hours of sleep. And if you've already done that, during the sleep, you tend to strategize and, optimize your skills, and you can plan the, game. And when you are actually in the field, you play very well because you're physically and mentally very active. You are there because you have had a lot of food which is rich in antioxidant. अब आपको मैं बताती हूँ, omega 3 food है.
नट्स है, फिश है, या इवन एग है, आप इन सब चीजों को अगर अच्छे से खाते पीते हो तो आपको कभी भी किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम नहीं हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है, आई एम श्योर आपको ये पता होगा। तो हम आगे चल के वी आर गोइंग टू टॉक एट लेंथ अबाउट दीज इश्यूज। और सिंस यू आर इन द ग्रोथ स्पेस एंड आपकी प्यूबर्टी भी हिट कर गई है, तो ऑब्वियसली काफी हार्मोनल चेंजेस भी आपके हो रहे हैं। तो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए स्लीपिंग एंड ईटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप क्या करते हो, आपका इम्यून सिस्टम को भी वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? आई विल टेल यू विद अ स्टोरी। लेट्स से योर there is a kingdom. In that kingdom there is a fortress. In that fortress there is an immune squad of soldiers. These soldiers have to protect the organs, the tissues, and the cells. Now, one day when they're sleeping, something happens. The germ army attacks the fortress. And now, what is to be done? The immune squad has to work very hard to thwart that attack. अब immune squad का problem ये था कि एक दिन पहले they had not slept well and not eaten well. So they started losing the stamina and the germs started attacking the fortress. So a wise man came and he said that if you have not slept well, let me at least feed you some good food. So he gives them a lot of fruits, lot of nuts, and a lot of protein diet, and they have it. And the team, the immune team, fights back like anything, and they are able to thwart the attack of the germ army. Same thing is like your body. Body also is like the fortress and it has to be protected by the immune system. So I hope you understand that how much sleep and how much eating right is good for your overall health. So if you agree with me, please type it in your chat box, which is your favorite food or fruit. It can be a protein, it can be any kind of fruit, या कोई डिश भी हो सकता है, whatever you like, non-veg, veg. So please write it in the chat box. We will connect again. So let's keep going. Let's rock and roll. And let's get on to the topic, which is unhealthy eating habits. Unhealthy eating habits क्या होती है? You all are teenagers, you're just growing up. And what happens when in the morning there is a huge rush to go to the school and you get up late? If you get up late, everything gets impacted because you're getting up late. तो क्या करते हो आप? सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट को मिस कर देते. And when you miss the breakfast, you have to catch the bus, and you're catching the bus. So it can, what it can do, आपका जो energy level है वो deplete होने लगता है by the time you reach your 4th period or 5th period. And in that break time, instead of having your breakfast which your mother has given you, you reach out to the canteen because आपको बहुत जबरदस्त फूड की क्रेविंग होती है. और आप क्या करते हो? You pick up burgers, you pick up pizza, you pick up rolls, and कभी कभी कोक वोक जूसेस तो मिल ही जाते हैं कैंटीन में, और उसको आप खाते हो. And you make poor food choices. अब आपने तो पुअर फूड चॉइस बना दिया और आपने गलत चीज खा भी ली. अब आपको क्या होगा? आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि आपने गलत तरीके से खाना खाया. और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एक्सेसिव अमाउंट आपके बॉडी में जो शुगर है, या आपने जो प्रोसेस्ड स्नैक्स खाए हैं या शुगरी चीजें खाई हैं, उसकी वजह से आपको नींद आने लगती है. तो अभी क्या होता है कि आप बाय द टाइम इट इज गोइंग, द डे इज गोइंग टू एंड एंड योर स्कूल इज अबाउट टू गेट ओवर, आपको बहुत स्लगिश फील होता है, इरिटेबिलिटी होती है, बिकॉज शुगर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि वो आपको एक एनर्जी बर्स्ट देता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3-4 आवर्स. और उसके बाद वो क्या करता है कि आपको बिल्कुल ही आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देता है. एंड अगेन आपको खाना खाने की इच्छा होती है, यू हैव सिवियर क्रेविंग फॉर दैट फूड, और उस फूड को आप खाने के लिए क्या करते हो? आप दोबारा से उसी तरीके का पुअर चॉइसेस करते हो, एंड यू स्टार्ट ईटिंग द सेम काइंड ऑफ फूड, एंड यू गेट इनटू दिस विशियस सर्कल. रोज यही होता है.
और आपको पता भी नहीं चलता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और ये प्रोसेस की वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, यू डोंट नो। इट मैनिफेस्ट very slowly and you get to know very late in life. This happened with my son when he was in his teens. It started off with him eating all these kind of snacky food and sugary food. He went to the college. He didn't realize this. We used to have interaction with him. He did not understand. And over a period of 2, 3 years, he was in hospital. What happened? There was too much of sugar intake, calorie dense food, बहुत ज्यादा खाने की वजह से his kidneys got impacted and also his bladder. So he was under treatment. So I don't want such a kind of a scenario to happen. I have learned my lesson and so has my son. So I'm sure कि आप भी आज के प्रोग्राम के बाद कुछ तो अपने थिंकिंग कैप को लगाएंगे एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ मच इट हेल्प्स यू। अब बहुत सारे केसेस में अब क्योंकि आपको इमोशनल इम्पैक्ट भी हो रहा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, यू हैव अ रफ डे एट स्कूल, टीचर ने डांट दिया, or your mother has said something to you, or you've had a fight with your friends. Emotional binge eating. You pick up anything that is there in the fridge, just open it, pick up a cake or a pastry or even some pizza, French fries, burger, whatever is there. You just pick it up, you start eating, you get a sense of relief. Your body gets a sense of relief. But this is a temporary relief because it is not actually addressing your emotion. It is just giving you some kind of a false relief. And because you are engaging in such kind of eating habit, I would say pattern, कि आपको पता ही नहीं लगता है. So every time such a kind of thing happens to you, कोई भी इमोशनल ओवरलोड होता है आपके साथ, तो आप बिंज ईटिंग करते हो, गलत चीजें खाते हो, एंड यू डोंट इवन नो कि व्हाट काइंड ऑफ फूड यू शुड बी ईटिंग. तो आपको इस चीज को, आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं उसको तो वो समय नम कर देता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है कि द काइंड ऑफ डैमेज इट इज डूइंग टू यू, because this is not a way of solving your emotional issues. What you should do, you should talk to your parents, you should talk to your elders. आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, talk to them rather than engaging in such kind of food. अब eating out of boredom, तो I see most of the children getting involved with this. So are you there with me? If you're there with me, please type yes in the chat box. अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है कि आप करते हैं, तो type yes in the chat box so that we can talk after this session is over and I'm going to address your issues. Boredom क्या होता है? आप संडे को आफ्टरनून को बैठे हुए हैं, you have nothing to do, you're watching TV, and suddenly something triggers inside you and you just open your mobile and Swiggy and Zomato, everything is there. Blinkit ho, kuch bhi ho. You order some food, you stuff your body with that food. Now the thing is, I want to tell you that if you're stuffing your body with such kind of garbage, so if you're stuffing body with garbage, so only garbage is going to come out. आपका cognition भी खत्म हो रहा है. आप stress feel कर रहे हो. Stress क्यों feel करते हो? It is a chain reaction. बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से आपको रियलाइज होता है कि आप वेट गेन भी कर रहे हो. वेट गेन कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो. तो प्लीज हैंडल योर ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. आपके ईटिंग पैटर्न्स क्या है उसको नोटिस कीजिए, उसको कहीं पे लिखिए, राइट इट डाउन. Find alternative activities. The moment you get the urge to have such kind of food, alternative activities में involve हो जाइए. What is that? You can go for some exercising or cycling, start writing something, start watching some podcast which you like, or even if you're eating something, eat something mindfully. Mindfully का क्या मतलब है? Healthy snacks खाइए. You can keep some nuts in your house and you can have some veggies, put some some lemon juice in it. उसको खाइए और
coconut water ले सकते हैं. You can have some, fresh juice. Do not have aerated drinks. I'm telling you, anything that is packed is going to pack your body. This is one thing which I have realized from my own mistakes as a mother. And now I am a coach. So I tell this to all the children that don't indulge in any kind of snacking and eat garbage. Garbage access to tempting food. अगर आपको खाना ही है, be mindful and see what kind of food is there. At least you can tell your parents कि मेरे को इस तरह का eating habit है. That some children like to eat over a period of 2-3 hours and all that. तो अगर आपको पता है और आपको ये चीजें मालूम है, share it with your parents, share it with your mother, and ask her to keep some healthy snacks for you. So let's go on to following restrictive diets. Extreme eating behaviors may lead to disordered eating habits. अब restrictive diets क्या है? आजकल तो सोशल मीडिया पे ये सब चीज इतना ज्यादा, you are watching it on social media. People are talking about keto diets. They are even talking about intermittent fasting. या even zero carb diets. ये सब आपके लिए नहीं है, because you are in the growing stage. And for this period, you need to have good food which is rich in nutrients. And अगर आप उस चीज को set aside कर देते हैं, जो बच्चे restrictive diets में believe करते हैं, they are following mindlessly on social media some people, some celebrities who are losing their weight, in 1 month they're losing 10 to 15 kgs and all that. Let them lose it. This is your growing, your body needs to grow at this time. They are doing this to get attention. They are doing this for the money, the profession that they have. आपका ये काम नहीं है, तो आपको इसको बहुत माइंडफुली फॉलो करना है. और अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स में जाना ही है, सो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम समबडी हु इज प्रोफेशनल. तो अगर डिसऑर्डर्ड ईटिंग हैबिट्स की हम बात करें, तो मैं यहाँ पे 2 बहुत प्रोमिनेंट ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करूंगी. दैट इज एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया में आपको क्या करते हैं कि आपका बॉडी वेट बहुत कम होता है, बट आपको ये फीलिंग होती है कि आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है. एंड यू लैंड अप eating, not eating, you land up starving your body completely. तो आपको वेट गेन का इतना मेजर इशू हो जाता है that you start vomiting. एंड उसका क्या रेपरकशन क्या होता है आपके ऊपर? फटीग होता है, इंसोम्निया होता है, एक्सट्रीम डिजीनेस होता है, फेंटिंग, फीलिंग ऑफ फेंटिंग होती है, हेयर लॉस होता है, बीपी बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन होता है. बुलिमिया इज एब्सोल्यूट ऑपोजिट. इट इज नॉट स्टार्वेशन. आप बहुत बिंज ईटिंग करते हो एंड देन यू वॉमिट आउट ऑफ गिल्ट एंड शेम दैट यू विल गेन वेट. दैट इज नॉट द केस किड्स. दैट इज नॉट द सिनेरियो आई एम टेलिंग यू. अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं एंड माइंडफुली खा रहे हैं, जो मैं बार बार, you will remain very much within your weight. And even if your weight is increasing and it is not impacting your life and you're doing your work properly, you can manage this weight issues properly also. तो अगर आप हंगर क्यूज भी है, हंगर क्यूज क्या होते हैं? कि फुलनेस, कि मेरा पेट भर गया है और अब मेरे को नहीं खाना है, या आपको हंग्री फील होता है. इसमें 2 जो हार्मोन्स होते हैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ग्रेलिन एंड लेप्टिन. आप ग्रेलिन और लेप्टिन के बारे में जरूर पढ़िएगा. तो ग्रेलिन क्या होता है? वो आपको बताता है कि आपको हंगर हो रहा है, एंड इट टेल्स द ब्रेन दैट आई एम फीलिंग हंग्री. सो द मोमेंट यू ईट, you get satisfied. The same time, लेप्टिन का जो काम होता है वो आपको बताता है कि अब आप फुल हो गए हो, now you should stop eating. You are eating disordered food और आपका हैबिट्स ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है कि आप प्रॉपर डाइटरी सिस्टम में नहीं हो, तो उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग करते ही रहते हो. तो यू हैव टू सी, स्पेशली दीज थिंग्स हैपन ड्यूरिंग एग्जाम्स. के टाइम यू do not pay attention to the signals. आप
कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो रात के वक्त, एंड यू फॉरगेट दैट इट इज लेट नाइट, मिडनाइट हो गया है, एंड देन यू ईट बिकॉज यू गेटिंग हंगर पैंग्स। एंड लेट नाइट ईटिंग की वजह से ओवर ईटिंग होता है और नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड फूड डेवलप होने लगता है। और आपका जो है नेगेटिव एटीट्यूड आपके बॉडी इमेज को भी लेकर होता है। इमोशनल डिस्ट्रेस होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इम्पेयर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस, आपसे काम ही नहीं होता है क्योंकि आप इस तरह का खाना खा रहे हो कि अगर आप रात में खा भी रहे हो, और अगर इफ यू आर हैविंग लार्ज पोर्शंस ऑफ कैलोरी डेंस, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरी डेंस फूड खा रहे हो तो आपके बॉडी को क्या होगा। fill up your plate with lot of pizza, pasta, French fries, और कोक भी लेते हो और सब कुछ लेते हो। और आप लोग में से काफी बच्चे ये सब करते हैं, बिकॉज आई सीन दिस इन माय हाउस ऑल्सो। क्या होता है कि आप वेट गेनिंग लगते हैं, स्लीप इश्यूज होने लगते हैं, आपको एंजाइटी होने लगते हैं, तो obesity होने लगता है और आपको रियलाइज होता है कि अब मैं तो बिल्कुल ही आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। This is because of lack of balance in your meal choice. Now I will tell you balance क्या है. Eat small portions of food which has got everything. That is nutrients होने चाहिए उसमें. Fruits खाइए, whole grain खाइए, vegetables खाइए, nuts खाइए, legumes खाइए. You should have proteins in a good amount. And you know that your body, if you're growing in that stage, needs at least 2000 calories in a day. And if you are kind of overweight and you're leading a sedentary lifestyle, तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, but extreme level पे कम करने की जरूरत नहीं। उसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। Now when we are talking about irregular eating schedules, कभी आपको एग्जाम है, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट और जेई सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो रात में आप देर तक अगर जगते हो तो आप अवेयरनेस होना चाहिए, आपको माइंडफुलनेस होना चाहिए कि आप किस टाइम खाना खाएं। अपने मोबाइल पे आप एक टाइम फिक्स कर दो कि इस टाइम मेरे को उठ के खाना खाना ही। इट विल सेंड यू अ रिमाइंडर कि आई एम गोइंग टू ईट माय फूड एट दिस टाइम। इफ यू कैन गेट अप from your table and you can scroll the Instagram and Facebook or any other Twitter या कुछ, then you can definitely take out 5 minutes of your time to eat properly. And lastly, mindless eating is a big no-no. मैं आपको बता रही हूँ, mindless eating तो खाना ही नहीं है। टीवी के सामने बैठना है और खाना है, मोबाइल चेक करना है और खाना है, पता ही नहीं चल रहा है बॉडी में जा क्या रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फूड दैट इज गोइंग इन योर बॉडी। दैट इज कॉल्ड माइंडलेस। माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग होता है that you enjoy each and every portion of the food that you're eating. Enjoy the texture, enjoy the flavor, munch your food at least 32 times. If you can't do that, at least let it savor in your mouth. उसको पता तो, आपको माउथ को पता तो चले कि the kind of food that you're eating is sweet or is it sugary, is it salty. You just eating and the mobile is in front of you, तो आपको ऑब्वियसली पता नहीं, यू कैन नॉट मल्टीटास्क। बॉडी इज नॉट मेड टू मल्टीटास्क, एंड आई एम टेलिंग यू माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, तो दे हैव टू वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन agree with this? Please type Y in the chat box and we can go to the next issue. Reasons for unhealthy eating patterns. अब रीजन क्या होता है? दोस्तों यारों के साथ बैठना, गप्पे मारना, एंड पीयर इन्फ्लुएंस तो बहुत मेजर होता है इस उम्र में, बिकॉज फ्रेंड्स आर द रॉक स्टार्स। आई मीन आपके लाइफ के तो मतलब पूरा लाइफ आपका इस समय इन्फ्लुएंस और इम्पैक्टेड होता है, यस और नो? तो these peer groups, they are the ones
who impact your even food habits. How do they do that? If they're making some food choices, they might even force you to have those food choices. If they're skipping the meals, they might even uh, make you skip those meals. आप प्रोटीन शेक्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, एंड because of the influence of those friends, you are not able to process things. तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये सब मत कीजिए. आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. जो आप प्रोटीन शेक्स लेते हो ना, आपके बॉडी को कम से कम 2 साल लगता है उसको डाइजेस्ट करने. सो डू नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स. सो हैव यू एवर बीन प्रेशराइज्ड बाय योर फ्रेंड्स to indulge in some kind of unhealthy eating and drinking also? Please write in the chat box. We will chat after the session is over. Now, convenience over accessibility. Convenience kya hai? The shop nearby which is selling fast food, burgers ho gaya ya chips ho gaya, anything that you like. और accessibility भी है, आपको Zomato हो गया या स्विगी हो गया, यू जस्ट ऑर्डर एंड यू गेट इट. सो बेसिकली आपको क्या हो रहा है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. तुरंत आपने कोई चीज ऑर्डर किया, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हुआ. तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन आर गेटिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एवरीवेयर, इवन ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स. तो वो तुरंत 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 वो आपको होता जा रहा है ना, जबरदस्त डोपामीन हिट होता है आपका. डोपामीन हिट होने की वजह से क्या होता है? आपको मजा आने लगता है और आप ओवर एंड ओवर अगेन उस हैबिट को री करते. So you have to understand that this is not the correct way of living your life. आपका प्लेट जितना बड़ा होगा, आपका दिमाग उतना छोटा होगा. तो आपको ये बहुत माइंडफुली देखना है. एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया. मीडिया पे तो बूम है. आपको चाहे आप विराट कोहली को देख लो, गेटोरेट बेच रहा है. सलमान खान हो गया, थम्स अप, टेस्ट द थंडर. Shahrukh Khan, Pepsi. Now, please write in the chat box if you remember any, celebrity selling all these products. And the target is you. टारगेट केवल और केवल आप लोग हैं और कोई नहीं है. तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो आपको एक ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं, आपको हिप्नोटाइज करते हैं बेसिकली कि ये चीज खरीदो. इट इज, इफ यू रियली आस्क दीज सेलिब्रिटीज, do they give these foods to their children? No way. They also believe in giving healthy. They are doing only for, publicity and all that. आलिया भट्ट को देख लो, फ्रूटी बेच रही है. कटरीना कैफ स्लाइस बेच रही है. ऋतिक रोशन इज सेलिंग माउंटेन ड्यू. डर के आगे जीत है. What जीत? What kind of जीत is this? This is no जीत, my dear kids, I'm telling you. ये इसमें केवल और केवल आपकी हार. You don't gain anything by all this media and advertising that is going on of unhealthy food. So if you have got influenced by all these things, please connect with me and write it down in the chat box. We will talk about this. Environmental factors क्या होते हैं? Environmental factors में हो गया कि आपके घर के बगल में एक फास्ट फूड जॉइंट है. आप वहां रोज जाते हो, कन्वीनियंटली वहां बैठ के खाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है. That junk is going inside you only, na. So you're going to become a junkie only, nothing else. I'm telling you, bro. You need to understand this very clearly. The sooner you realize, the better it is. And गर्मियों में क्या होता है? Again, generally I see children going and having a lot of juices, a lot of coconut water, and khana is a big no-no. I mean, it is summer time. तो खाना has gone for a toss. And nutrition आप सोच रहे हो जा रहा है only making one kind of choice, that is having, juices and flavored milk or whatever, flavored yogurt. It doesn't help. You need to have food. खाना तो खाना जरूरी है ही. आपके पास कोई तरीका ही नहीं उससे बाहर निकलने का. तो please be very, again I'm reiterating and I'm specifying again and again, mindfully ये काम कीजिए. सर्दियों में क्या होता है? Your body needs to store fat, so you eat and you eat and you eat. Again, that is going to another extreme. You need to understand all these aspects. और आपको अगर ये चीज अगर अभी पता लग गई है, तो और अगर आज से भी आप जिंदगी स्टार्ट करते हैं,
जब जागो तब सवेरा, मैं तो यही कहती हूँ। Just start doing this and following these. If you're following these patterns which are unhealthy for you, so you can always revert back to healthy patterns also ना, क्योंकि वो भी तो आपने over a period of time build up किया है। तो इसको अगर आप इस पैटर्न को आप चेंज करना चाहते हो तो माइंडफुली इस पे भी काम करो। अवेयरनेस होने से खाली काम नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन करने से काम होता है। बॉडी इमेज कंसर्न्स है आपके, बॉडी इमेज कंसर्न क्या हो गया? अभी तो रिसेंटली आई सॉ ऐश्वर्या राय बीइंग रियली ट्रोल्ड फॉर बीइंग टू कांस एंड शी हैज पुट ऑन वेट। तो वो कंसर्न्स आपके अंदर भी हो जाते हैं, आप बहुत ही इनसिक्योर फील करने लगते हो एंड यू फील वेरी स्कैर्ड, यू डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज, you immediately withdraw because you have either gained too much of weight or you have lost too much of it। और सोशल एक्टिविटीज से आप बाहर निकल जाते हो तो आपको एक काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ शेम होता है आपके अंदर एंड यू बिकम सोशली वेरी आइसोलेटेड। और उसका इफेक्ट क्या होता है? डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन nobody wants। So if you are getting into this mode, you need to be careful। You start wearing those baggy clothes and to hide your body because you're shameful again। your difficulty in concentrating, obviously माइंड तो है ही। बॉडी में अगर ऐसा फूड प्रोसेस हो रहा है तो फॉगिंग, ब्रेन फॉगिंग होगी आपकी, concentration level will go down, dizziness and fainting। Children also, when I was talking about bulimia and even anorexia, they are the children who face all these kind of issues a lot। Sleep disturbance, sleep and eat go together। So अगर आप अच्छे से खाना खा नहीं रहे हो तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, गलत खाना खा रहे हो तो भी होगा, इरेगुलर मेंसेस होंगे, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, एनीमिया है, लो थायराइड है, पोटेशियम लेवल has gone up or down। So road to recovery, there is good news। educate yourself and others। आप वेबसाइट्स पे जाइए, रीड अबाउट थिंग्स, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, connect with dietitian and diet experts and get to know about it। incorporate balanced nutrition। incorporate balanced nutrition में आप अच्छा खाना खाइए and get all the good food that is required for you। now उसमें आप क्या क्या ले सकते हो? होल ग्रेन्स ले सकते हो, प्रोटीन्स ले सकते हो, फैट ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, वेजीज ले सकते हो, सबको इंक्लूड कर। सेट रियलिस्टिक गोल्स, मतलब ओवर एक्सरसाइजिंग ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। रियलिस्टिक गोल्स, अचीवेबल गोल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप इतना ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर लियो कि यू स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स विद यू। लिमिट प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डू नॉट गेट इनटू हैविंग कोक एंड पेप्सी। दिल डज नॉट मांगे मोर, प्लीज, दिल डज नॉट मांगे। So develop healthy coping mechanism। Eat on time, set reminders on your mobile। So अगर आप healthy coping mechanism है तो do not indulge in having pills। और substance abuse तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं लेना है, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेना है। मेडिटेट, एक्सरसाइज एंड जर्नल, ये तीन चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखिए। स्टे हाइड्रेटेड एंड प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। Love yourself first। I'm telling you, be kind to yourself। If you can be kind to your friends and the people around you, you are the first and the most important person to be kind to yourself, because nobody is perfect and you have to love yourself and stay connected with professional support। Now let's get on to how much sleep do you need? Please write in the comment box. I need you to write it. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Yes. The National Sleep Foundation recommends that teenagers should sleep at least 8 to 10 hours. अब क्यों sleep करना है? Biological and hormonal changes occur during this period. I'm sure you must be already facing this। And there is a shift in the circadian rhythm। circadian rhythm क्या होता है? आपका internal body clock होता है, आपका sleep time and wake up time को control करता है। But during puberty,
सर्केडियन रिदम, जो सर्केडियन साइकिल है, वो थोड़ा डिले हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से यू नोटिस, एंड आई हैव आल्सो नोटिस इन माय हाउस, children sleep a little late. If you've been sleeping at 9 earlier, now your shift has been to 11. So if you are sleeping at 11, sleep at 11. Do not do any other activity, because adequate sleep is essential for physical growth, cognitive development, and also for emotional regulation. So if you are staying up late in the night, क्या होगा? ब्रेन फॉगिंग तो होगी ही होगी, और आपको डिफिकल्टी होगी, एकेडमिक लेवल पे भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको देखना है कि आपको कहाँ पे ये सब चीजों को रोकना है। अगर आपका फिजिकल ग्रोथ उससे स्टंट हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, so what you need to do, body, when you're sleeping, body repairs itself. Their muscles also repair, they grow while you're sleeping, and आपका immune system को strengthen करता है. So if you are not sleeping, you're sleep deprived, then what is going to happen? It can lead to compromise of all those functions. Illnesses होंगे, injuries होंगे, cold and flu बहुत frequently आपको होगा. तो जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर से अपने बॉडी को भी चार्ज कर, रेस्ट एंड रिकवर. दिस स्लीप इज लाइक अ चार्जर फॉर यू. एंड आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है. कैसे होता है? मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, लर्निंग होता है व्हेन यू आर स्लीपिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती है, थिंकिंग में क्लैरिटी आती है, कंसंट्रेशन बेटर होता है, यू मेक साउंड डिसीजंस. इमोशनल रेगुलेशन बहुत जरूरी है इसके लिए, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो अगर आपके अंदर स्लीप डेप्रिवेशन है तो एंगर इश्यू होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा. तो आपको हार्मोनल बैलेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सब चीजों में. सो let me first stress on the immune system also. Immune system help you to regulate your inflammatory responses. तो आपको infection के against वो बचाता है. That is any kind of virus, any kind of germ attack. Immune system only works well if you're sleeping well. So अगर आपको sleep problem है तो diabetes भी बहुत early stage में set in कर सकता है, heart disease हो सकते हैं, high BP हो सकता है. So you need to sleep well, and otherwise you are going to be susceptible to all these kind of problems. Productivity भी बहुत impact करता है, आपका relationship बहुत impact करता है, आप लोगों से बात ही नहीं कर पाते हो, इमोशनल लेवल पे आप रहते ही नहीं हो, यू आर ऑलवेज एंग्री और शाउटिंग और येलिंग. आप अपने आप को देखो, जिस दिन आप अच्छे से सोते नहीं हो, हाउ द डे प्रोसेसेस. Just mindfully observe how the day goes and then write it down somewhere. You will get to know and you will be able to identify those patterns. Unhealthy sleep patterns क्या होते हैं? Irregular sleep schedules. मतलब कि अगर आज आप 9 बजे सो रहे हो तो टुमारो यू आर स्लीपिंग एट 11. अगर आप परसों सो रहे हो 11 बजे, then you're getting up at 8 o'clock, 9 o'clock. Someday you're getting up at 6 o'clock in the morning. बाप रे बाप. Cognition बिल्कुल खत्म है आपका. The brain is getting such conflicting signals. You are actually, making the brain suffer so much. Irregular sleep schedule हो रहे हो, different level पे आप जा रहे हो एकदम. कभी इस टाइम सो रहे हो, कभी उस टाइम सो रहे हो, आपका सर्केडियन रिदम तो कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकता. तो मेरा ये कहना है कि इरेगुलर स्लीप शेड्यूल की वजह से आपका बॉडी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है. हॉलीडेज पे आप अगर लेट उठना चाहते हो तो 2 आवर्स के गैप में आपको उठ जाना चाहिए. इफ यू आर गेटिंग अप एवरी डे एट 6 o'clock, by 8 o'clock you should be up and about on a holiday, so that by Monday अगर आपको उठना है, you are able to get up at 6 o'clock. A small shift in the sleep pattern can still be adjusted, not a big shift. So holidays may have seen children sleeping till 12, 1 o'clock, and suddenly when they have to go back to school,
तो बहुत मेजर स्ट्रेस होता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बिफोर बेड, स्क्रोलिंग 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 पूरे टाइम, डोपामिन हिट जबरदस्त। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। भाई इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं बहुत ज्यादा, दैट यू वाचिंग द स्क्रीन ऑल द टाइम, सब वाचिंग के पॉप, के ड्रामा, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ। इमोशनली हाई वो लिंगर करता है आपके दिमाग, स्लीप डिले हो जाता है जबरदस्त। नाउ द ब्लू स्क्रीन जो है वो आपको क्या करता है, वो आपके ब्रेन को कंफ्यूज करता है एंड इट मेक्स इट फील दैट इट इज डे टाइम। तो आपको पता ही नहीं लगता है कि वो डे टाइम है कि नाइट टाइम है। और एक और चीज है, आपके बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन, उसके प्रोडक्शन को वो डिले कर देता है एंड वो आपके डोपामिन को बढ़ा देता है और आपके अलर्टनेस और अराउजल को बढ़ा देता है, और वो दिन आपका कैसे निकल जाता है आपको पता नहीं। कैफीन इज अ बिग नो नो। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स what are the products which have got caffeine. I know that I used to have a lot of caffeine when I was a kid, and it was not helpful for me, though I had to leave this unhealthy pattern. So, energy drinks में भी होता है, sodas में भी होता है, tea में होता है. It blocks a neurotransmitter called adenosine that promotes relaxation and sleepiness. So, अगर आपको ये पता है जिस चीज को ब्लॉक कर देता है, तो आप इमीडिएटली इस चीज को बंद कर दीजिए। पुअर स्लीप एनवायरनमेंट, लाउड डिसरप्टिव एनवायरनमेंट, जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है, साउंड बहुत ज्यादा, पीपल आर टॉकिंग टू मच, और इफ यू स्टेइंग समवेयर नियर द स्ट्रीट, dogs are barking or a lot of people are talking on the street, put some earbuds inside your, if you are sensitive to a lot of noises, अपने हार्मोन को भी चेक कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है उस समय अंदर जब आप सो रहे हो। और टेम्परेचर को भी आपको चेक करना है कि इफ इट इज टू कोल्ड और इफ इट इज टू हॉट, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स यू। आपका अनकंफर्टेबल बेडिंग भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे? अगर अनकंफर्टेबल पिलो है और अगर मैट्रेस है, तो आपको बैक पेन भी हो सकता है, पिलो इज नॉट राइट या ब्लैंकेट्स प्रॉपर नहीं है। और अगर क्लटर है, डिसऑर्गेनाइज्ड रूम है, you don't feel like sleeping in that kind of room. Yes or no? I do, at least I don't enjoy sleeping. I like a room which is very nice and a room dimly lit when I'm going off to sleep. It gives you what a lala kind of a feeling, you know. Unpleasant odors. अगर कोई smell है कमरे में, या तो आप एक अगरबत्ती जला सकते हो, इंसेंस लगा सकते हो। सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। इट विल गिव योर माइंड अ वेरी पीसफुल फीलिंग। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब मस्कीटो से भी बचना है, ये सब भी आपको देखना है, मस्कीटो नेट लगा लीजिए। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है भाई, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इस उम्र में बहुत ज्यादा, आप लोग से ज्यादा तो किसी को भी नहीं होती है, आई एम श्योर। तो वरी किस चीज के लिए? एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई में क्या होगा बाबा, क्या होगा। फैमिली प्रेशर भी है, उस फंक्शन में भी जाना है, ये भी करना है। फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके फैमिली में। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट्स ने कुछ काम दे दिया, वो करना है, उसको भी आपको लेके चलना है विथ योर स्टडीज, विथ योर एकेडमिक्स। तो वहां पे भी स्ट्रेस होता है, सोच, यू गेट इनटू अ थिंकिंग मोड। सिबलिंग्स के साथ फाइट्स होते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। Transition from one city to another can also have a big impact. My kids have had a lot of impact because of this, because I belong to the army and we keep shifting after every 2 years. That creates a lot of stress and anxiety, transferable jobs. Shifting from one school to another also changes your environment. उससे भी stress और anxiety बहुत ज्यादा होती है। Biological changes क्या होते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है? This is a period of growth and this is a period of change in your body. आपके हेयर ग्रोथ होता है, आपके बॉडी ग्रो करती है, हाइट में आप ग्रो करते हो, और आपको बहुत अजीब सा फीलिंग होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है उसकी वजह से। बट दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। इट इज नॉट ओनली यू हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, rest everybody of your age is having this problem. Yes or no? So if you agree with me, type yes, or if you're having any other issue also, you can write it in your chat box. We will get back to you. Talking to friends is the most toxic
pattern or a behavior that I, भाई बात करनी है स्कूल में बात कर लो, डे टाइम में बात कर लो. What is this, great thing about talking in the night and chatting in the night? And that is also not a good thing, because late night parties के लिए भी आप लोग जाते हो. These are the issues that you need to deal. How do you know you're having these problems? Excessive daytime sleepiness. दिन भर नींद आती है. You fall here, you fall there. There have been a lot of times I've seen, I was a counselor at a school. I used to see children actually coming in the school, and in the first period only they go off to sleep. So you can imagine, क्या आपके ऊपर ओवरलोड है, सेंसरी ओवरलोड तो है ही, बिकॉज आप मोबाइल को इतना यूज कर रहे हो, उसके अलावा सो नहीं रहे हो, कपल्ड विद दैट, तो स्लीपीनेस तो रहेगा ही. अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं, अब आई विल गिव यू वन इंस्टेंस दैट देयर वाज when I was a small kid, I went off to sleep very late in the night, and next morning I went to school, and when I got down from the bus, children were literally laughing at me. For what? I didn't even know. Just imagine, I was so groggy and I was so sleepy. One of my friends came to me and told me, have you gone mad or something? I said, what kya hai? I was wearing two different colors of socks. One was black and one was white. This is what lack of sleep does to you, dear. So, bro, become alert, know what you have to do. So, such kind of funny things keep happening. So, if you have experienced something like this, you can write it in the chat box. We can share together. So, if you are awakened during the night, it could be because of insomnia, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हो सकता है. वॉशरूम बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हो, आपका ब्लैडर ओवर एक्टिव है, तो भी आप रात को बार बार वॉशरूम जाते हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. एंड देर इज नो रेगुलरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप टाइम. यू आर हैविंग ट्रबल अगेन वेकिंग अप एंड स्लीपिंग, बिकॉज वो सेम चीज आपके साथ चल रही है. फीलिंग ओवर टायर्ड ड्यूरिंग द डे. स्लीप वॉकिंग करते हो आप, मतलब स्लीप वॉकिंग इन द सेंस कि रात को अचानक से नींद खुलती है और आप अचानक से उठ जाते हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. देन आपको कोई नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं, बिज़ेयर फीलिंग्स आती हैं आपको, ड्रीम्स आते हैं. दैट इज ऑल्सो बिकॉज सम थॉट्स आर गोइंग इन योर माइंड, और वो आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है. स्लीप टेरर्स हैपन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लीप, and nightmares happen in the second half of the sleep. So, but good thing about sleep terrors is you don't remember anything. Nightmares you do remember. अगर ऐसा कुछ हो रहा है, please tell your parents. Consequences of poor sleep patterns, difficulty with emotional regulation. बहुत मुश्किल होता है इमोशंस को कंट्रोल करना. आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, यू थ्रो अराउंड थिंग्स, रेगुलेट नहीं कर पाते हो. इंक्रीज इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी. ऑब्वियसली अगर आप इस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो डिप्रेशन तो होगा ही आपको. यू फील ओवरवेल्म्ड बाय लाइफ चैलेंजेस. छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, तो इमोशनली आप रेगुलेट नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप ठीक से सो नहीं रहे. इट हैज गॉट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन यू. इट हैज गॉट अ डायरेक्ट लिंक. मेमोरी और लर्निंग और अटेंशन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, बिकॉज व्हेन यू स्लीपिंग it helps you to build up your cognition, आपका ability to concentrate, you get new information, you retain memories, you can focus better in the classroom. So academic performance भी आपका poor हो सकता है if you're not sleeping well. You're not able to complete your assignments. And I hope it is making sense to you. If it is making sense to you, please write yes. So what happens is that you are being taught study material, आपको बहुत सारी चीजें दी जाती हैं और एकदम माइंड एकदम क्लॉग्ड है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. अगर आपका पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, देन यू कैन रिलेट इट टू योर स्लीपिंग हैबिट्स. एंड इलनेसेस बहुत होने लगते हैं, बहुत जल्दी आप बीमार पड़ने लगते हो. पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगती हैं. आप दोनों का अलग ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स है, तो ऑब्वियसली सो लेट्स गेट डाउन टू हेल्दी बेड टाइम रूटीन. वो क्या है? कंसिस्टेंट रहिए अपने स्लीप टाइम और वेकअप टाइम के लिए. जिस टाइम रोज सोते हैं उसी टाइम रोज उठिए. डू दिस एवरी डे. मे बी यू कैन मेक स्लाइट चेंजेस बट नॉट वेरी ड्रास्टिक चेंजेस. बेड टाइम शुड बी solely for sleeping purpose. Bed should not be used for eating,
for texting, for doing your homework, for talking to your friends. The moment you develop an association of sleep with the bed, your mind gets to know that this is the time to sleep when you hit the bed. So the only association you need to have with the bed is sleep. No other activity should be done on the bed. I know most of you do that because my children also used to do that. Digital detox, big no. नहीं use करना है. Mobiles को at least 1 hour before bed. Just throw away the mobile because it is actually आपके melatonin production को जो मैं पहले बता चुकी हूँ कम कर देता है. Limit usage of caffeine and sugars. कम कर दीजिए and you will see a drastic change in your sleep pattern. Optimize your sleep environment. Sleep environment को कैसे optimize करना है? Make your room dark, quiet, the way it is. Room fresheners लगाइए, ear plugs लगाइए, breathing करिए थोड़ा सा, manage करिए अपने stress को, and limit daytime napping. डे टाइम में अगर आपने सो लिया है तो आप रात में वैसे ही आपको नींद नहीं आएगी and you again get caught into this vicious circle. Create a sleeping ritual, follow wind time routine, put the screen away, do some gentle stretches, relaxing music लगाइए या कोई podcast सुनिए, journaling कीजिए, read some books, physical activities. You would love to play some games, please go out, do swimming, play specific तरीके के जो गेम्स है जो आपको अच्छे लगते हैं उनको कीजिए. आई एम श्योर समथिंग दैट मस्ट हैव ट्रिगर्ड इन योर माइंड. प्लीज राइट इट डाउन एंड स्टार्ट डूइंग इट फॉर टू. सो द power of choice is in your hand. The key takeaway is prioritize sleep, fuel your body with nutritious food, seek support. Smart goals is specific, measurable, achievable, and relevant, target oriented goals. इनको achieve कीजिए. Take ownership of your health. Remember, every choice that you make today shapes the person you become tomorrow. So choose wisely. The journey to a healthier you begins with a single step. So what is yours? Thank you so much, children, for being so patient and staying connected with me. If you have any, please do let me know. Thank you, Anupama ma'am. Thank you for such a lovely session. A successful life needs good food and good sleep. Thank you, everybody, for joining the session. If any queries, you can on your mic and ask her questions. Anyone? The question. Yes. What is your take on vegan diet? Is it good? Should we go for it? Vegan diet? Yes, ma'am. Yeah, okay, then I will share with you one experience that I've had. One of my daughter's friend, she had gone on a complete vegan diet and she was put in hospital because she had become so restrictive towards her diet. And India में एक बहुत major issue है कि proper vegan diets के बारे में लोगों को knowledge नहीं. And stores में भी लोगों के पास उतनी availability नहीं है, which is there maybe in Western countries. तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है. एंड कुछ चीजें हैं जैसे she had become very thin and she had become so thin that she had to even take a drop year from the college. So sometimes it can lead to such kind of problems. So I would say that it is your growth period. Whether you are vegan, don't be very restrictive about it. Maybe you can follow a certain things from everywhere. Pick up certain things from here, pick up certain things from here, make it a diet thing. And best is कि आप किसी dietitian को contact कीजिए, उनसे बात कीजिए. I'm sure you will be able to get some answers to it. But vegan diet completely follow करने से कुछ health issues तो होते हैं. Because काफी चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है. Proteins तो completely, milk diets तो बिल्कुल ही छोड़ने पड़ते हैं. And animal fats, animal protein बिल्कुल ही बंद करना पड़ता है. तो somewhere down the line it does impact you. And to what extent it impacts you, you get to know that if you've been following this for over a period of 3-4 years. And everybody
की requirement is very different. So body to body requirement is different. So please don't follow if somebody else is following. That doesn't mean that you also have to follow the same thing. That is what my take is. Thank you. Yes, हेलो please. Yes. यस गुड इवनिंग मैम Good मैम evening. ऐसा क्यों होता है कि हम एक अच्छा डाइट खा रहे हैं और हाँ सारे रिचुअल्स भी फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी हाँ फटीग रहते हैं और फेस पे कोई ग्लो नहीं होता और ऐसा फील होता है जिससे सामने वाला बंदा कहता है कि आप बीमार हैं क्या? ऐसा इसलिए फील होता है कि अगेन व्हेन आई एम गोइंग टू रीइटरेट दिस फैक्ट दैट माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं. आर यू स्लीपिंग ओके? यस मैम, स्लीपिंग 7 hours. Okay, you're sleeping, let's say 7 hours. And what about your emotional health? What about your, other aspects? That is, cognition भी आपका ठीक चल रहा है. आप सो रहे हो, आप अच्छा खाना भी खा रहे हो. Are you addressing your emotional health? If you're not addressing your emotional health, it is going to have a big impact. There are a lot of people I know myself. In fact, I was also one of them a few years back. I used to exercise excessively. I used to do a lot of, dietary restrictions and all that. Everything was happening well. But एक level पे आके I had hit a plateau. In the sense, उसके बाद weight lose हो ही नहीं रहा. Face पर से glow चला गया. Then I became very mindful. I was not I was not dealing with my emotions very well. Stress and anxiety. उसको मैं अच्छे से डील नहीं कर पा रही थी. तो सब कुछ एक साथ चलना बहुत जरूरी. जैसे एक खाने की जो प्लेट होती है ना, उसमें सब कुछ अगर बैलेंस्ड है तभी वो खाना ठीक है. तो वैसी लाइफ भी होती है. एवरीथिंग हैज टू कम इन स्मॉल चंक्स. मतलब कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा न्यूट्रिशन, थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, सेल्फ स्टीम अच्छा होना चाहिए. आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी सही होना चाहिए. तो ये सब छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक इंसान फुली पोटेंशियल बनता है. दिस इज माय टेक. सो आई होप आई बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. यस मैम, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में होता है ना मैम, तो उसको कैसे मैनेज करें फिर? माइंडफुल बहुत सारे माइंडफुल एक्सरसाइजेज हैं जो इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी सेपरेटली मैं आपको बताऊंगी. घर बैठे कर सकते हो आप, बहुत आराम से कर सकते हो. मतलब अगर आपको सडनली ट्रिगर फील हुआ कहीं पे और आपको यस रियलाइज मैम. हुआ कि आपको कुछ हो रहा है, तो आप हम्म. बहुत सारे बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं. और हम लोग बहुत सारी अदर चीजें भी सिखाते हैं. 5 सेंसेस को कैसे ट्रिगर, ये मैंने अपने पिछले उसमें भी टॉक में भी ये बताया था, कैसे ट्रिगर करते हैं और आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं अपने आप को. और अपने जो आपके ट्रिगर्ड, आपका जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो बहुत ट्रिगर्ड हो रखा है, आप अराउज स्टेट में हो, तो उसको कैसे रिलैक्स करना है. तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हो. उससे आपके ऊपर बहुत फर्क. स्लीप सोने से पहले करो तो बहुत ही अच्छा. Okay, ma'am. सोने Then से how can I connect with you, ma'am? I have in my live slide I had given my phone number. Uh, Okay. uh, so maybe somebody can in the chat box write my mobile number. You can connect with me, please. Okay. Okay. Thank you, Definitely. ma'am. Thank you so much. Okay. Anybody हेलो else? Somebody had written about vitamin हेलो D. हेलो Yes, yes. Tripti. हाँ मैडम, कभी कभी क्या होता है सोने इसे कभी कभी आती है नींद, पर कभी कभी क्या होता है ओवर एक्साइटमेंट रहती, कुछ काम करना रहता है, कुछ फंक्शन रहता है घर में, और हम्म. कभी कभी ऐसा रहता है कि किसी ने हर्ट किया रहता है अपने को. कभी कभी बहुत हाँ, खुशी भी अगर हुई होती है तो भी वो नींद नहीं आती, वही वही वो मैं आपको सोते रहते. बताया ना. एक्साइटेड स्टेट में रहते हो, अगर इतना अराउज स्टेट में रहोगे तो नींद कहाँ से आएगी. हाँ, तो फिर उसको बॉडी कैसे अपन चेंज नहीं, तो चेंज आपके करें? अंदर एक इंटरनल डायलॉग चलता रहता है ना. जब आप लेटते हो तो माइंड एकदम खाली हो जाता है, तो फिर आपका हाँ खुद का जो है आपस में बातचीत चलता है. खुद का हाँ, बातचीत सेल्फ चलता है ना, टॉक. हाँ, कंटिन्यूअस बातचीत चलता रहता है, तो वो बातचीत को रोकने का है. either we go in future or go in past.
But why can't you तो live in the present? हाँ, ऐसा क्यों होता है? है ना, प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में अगर रहोगे तो कितना अच्छा है लाइफ। आपको फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पास्ट ऑलरेडी निकल चुका है। निकल चुका है। फ्यूचर पता है कल क्या होगा? डू यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर? कल क्या होना है आप बताओ, प्लीज टेल मी, तो आई विल आल्सो बी वेरी। वो भी अपने हाथ में नहीं है, ये सब समझता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते थॉट्स। मेडिटेशन भी करती हूँ मैं, पर उस टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ भी यानी मेडिटेशन भी नहीं कर पाती, वो थॉट्स तो में। मैं आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ, मतलब माइंडफुली आप उसको अपने एक जर्नल, एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसको लिखिए उस थॉट्स को, और उन थॉट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उस पे काम कर सकते हो। खाली अवेयरनेस होने से कुछ नहीं होता है कि मेरे को पता है कि गलत हाँ खाना खाने से अच्छा नहीं होता, तो क्या हाँ हुआ? उससे कुछ नहीं होने वाला। गलत खाना खाने से अच्छा नहीं होता तो क्या हुआ? उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या? जब तक उस हम्म। चीज को आप काम में नहीं लाओगे तो क्या फायदा है? आप रोज अगर अपना बच्चे को बोलते हो कि आप टाइम से सोया करो, और वो नहीं सो रहा है, अवेयरनेस उसको भी है आपको भी है, लेकिन हम्म। उसके लिए आप एक्शन क्या ले रहे हो? हाँ, तो सोना यहाँ पे पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विथ मी, मैं आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ जिसकी वजह से आप अपना एक डायरी मेंटेन कर सकते हो। ये रेसिंग थॉट्स जिसको बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर क्रिटिकल मोड में चले जाते हो, या बहुत एक्साइटेड हम्म। हो जाते हो, या बहुत दुखी हो जाते हो, तो ये हाँ एक्सट्रीम इमोशंस है। तो हाँ एक्सट्रीम हाँ इमोशंस तो कोई नहीं बोलता अच्छा होता है, एक्सट्रीम तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाहे इमोशंस हाँ हो, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे कोई कोई बिहेवियर हो, चाहे खाना हो, कुछ भी अच्छा नहीं हाँ। होता। तो आपको ये चीज माइंडफुल होना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो अभी अच्छा। तो टाइम का थोड़ा इशू है, तो यू कैन स्टे गेट कनेक्टेड विथ मी, आप मेरे को कॉल करो, आई विल वी विल टॉक तृप्ति। बट ओके। अभी मैं इन जस्ट आपको बता रही हूँ, फ्यूचर एंड पास्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्रेजेंट में रहो। ओके मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Considering the time, we will end our session now. And थैंक if यू somebody has doubt, please connect with ma'am directly. Thank you, मीका, everybody, for joining the sessions. you can connect with me later. Thank you so Yeah. much, ma'am. Thank you Thank very you much, everybody. Anupama ma'am. Thank you. Thank you. It was really a pleasure to have you, and you Thank you have so much. given a very wonderful session, ma'am. Thank you, Thank you ma'am. very much. Thank you.